Praise the name of the Lord. Shalom, hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the King of Kings. Blessed be the name of the Lord of Lords. Hallelujah. Bless you, Lord Jesus of Nazareth. Lord Jesus of Nazareth, we bless your holy name. Hallelujah. Lord, we bless your name. Lord, we bless your name. Lord, we bless your name. Lord, we praise your name. Hallelujah. Hallelujah. We praise your name, Lord Jesus. Lord, we praise your name. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Lord, we bless you. We bless you, Lord. We bless you. Hallelujah. Lord, we praise your holy name. We bless your holy name. Hallelujah. Hallelujah. We bless your holy name. Glory to God. Blessed be the name of the Lord. 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 Blessed be the name. हालेलुया. सब अपना मुंह खोलिए, कुछ समय प्रभु का धन्यवाद कीजिए सभी. हालेलुया. सब प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कीजिए. अपना मुंह खोलिए. हालेलुया. Lord, we bless you. Lord, we praise your name. Lord, we glorify you. Lord, we exalt you. We magnify you, Lord Jesus. We lift up your holy name, Jesus of Nazareth. We lift up your precious name, Lord. We lift up your precious name, Lord. We exalt you, Lord. We exalt you. We magnify you. We glorify you, Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth, King Jesus of Nazareth. King Jesus of Nazareth, King Jesus. King Jesus of Nazareth, King Jesus of Nazareth. King Jesus of Nazareth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. King Jesus, King Jesus, King Jesus. Glorious King Jesus, we bless you, bless you, bless you. Hallelujah, hallelujah, Lord of glory. Hallelujah, hallelujah, Prince of life, we bless you. The Alpha and the Omega, the Aleph and Tav, we bless you. The beginning and the end, we bless you. The bright and the morning star, we bless you. The lily of the valley, we bless you. You, the fairer among 10,000, we bless you. The Lion of the tribe of Judah, we bless you. We glorify you, glorify you. King of kings and the Lord of lords. For your name is Emmanuel. You shoulder the government, Lord. Hallelujah. Sar Shalom, Prince of Peace. Hallelujah. Wonderful Counselor, mighty God, the everlasting Father. We bless you.
Bless you, Yehoshua HaMashiach. We bless you, Yehoshua HaMashiach. We bless your name, Yehoshua HaMashiach. 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 Bless your name, Yehoshua HaMashiach. Bless your name, Yehoshua HaMashiach. We magnify your name. Hallelujah. Father, Avinu Malachinu, I come before your throne of grace. I bring these folks who are online right now, fellowshipping with one another in the realm of the Spirit. I pray for them. I pray for Pastor Amrish Kumar, for your hand over him, over his family, and the little angel whom you sent into this man's life, a beautiful daughter that you blessed him with. We cover that new life under the blood of the Lamb. Hallelujah. And we pray, Father, for Sunita Kaur, your daughter, that you stretch forth your mighty hand over her daughters, Lord. Your hand be upon them. That you lead this lady and guide her household and use them for your glory. Lord, pray for Sahil from Pakistan, for your hand to be over his household. I pray for Minu Sood, that you bless her and her household. Sunita Guria Kanswar, that you bless her and her household. I pray for Devinder Kular, particularly for her husband. Lord, that your hand be upon him, that your healing anointing will flow, Lord, in Jesus' name. Bless her household, I pray thee. And Lord, I pray in the name of Jesus for Kundan Shah from Delhi, that you bless this dear brother. Lord, I pray that you bless brother Lalit Mehra, that your hand be upon dear brother Lalit Mehra. That you bless Anita Rani, Lord, that your hand be upon her. Bless Sabi Surjit and his father and mother and his whole household, Lord. You bless this gentleman. Lord, I pray for Bahadur Singh Akash, your blessing over the entire family, Lord. Bless Inderpreet Singh, may your hand be upon this gentleman. Over brother Jaswant Singh and his household. Lord, I pray for Bobby Art, and I pray for his brother who's a pastor. I pray for Agnes Lal and her household, Lord, for your blessing to rest upon them. Lord, stretch forth your hand over Komal Masi and her household, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. I pray for Aaron Sugrim, that your hand be upon brother Aaron and his household. Bless your daughter Angela Daroch, that your hand be upon her, Lord. Bless Rima Shamim, Lord, in Pakistan. I pray thee in the name of Jesus for Akansha Kumari in Britain, that your hand be upon Akansha, that you lead her and guide her in the path of righteousness and purity and truth and justice and righteousness, Lord. And I pray, Father, in the name of Jesus for Gurdeep Singh and his household, Lord Jesus. I pray, Father, for all others who are online right now, like Mary Dean and Vinodini Christian from Canada, Mary Dean from the United States. I speak your blessing and anointing over them, Father. Over your daughter, Vinodini Christian from Canada, I speak the blessing of the blood of the Lamb. And I bless Lena Davidson and her household. Lord, I pray that you bless her household in the name of Jesus of Nazareth. Hallelujah. Thank you, Lord. Bless Anita Rani. Bless all whose name I don't see. Bless them too, Lord, who will listen to this word later. I pray in the name of Jesus, Lord, that the unction
will begin to flow. The anointing will begin to flow. Lord, that your anointing will carry the message to the hearts of your people. Hallelujah. Lord, I pray for Karan Duggal, Brother Lalit's prayer request. We lift up Karan Duggal before your mighty presence, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We bless you, Lord. Kindly pray for us also. Pray for me, my wife, my children. We had a little rough patch lately, but the Lord was with us. He delivered us, and through His ever abiding presence, we are through to this rough patch in our life. But please pray for us, for our whole household. Hallelujah. Release the blood of the Lamb all around us. Father, I also pray in the name of Jesus of Nazareth for Light of Jesus, your daughter Nar, that you bless her, Father. Hallelujah. And Father, in the mighty name of Jesus of Nazareth, I pray for Mahesh Kumar too. तेरी बरकत, तेरी आशीष को महेश कुमार पे भी हम खोलते हैं. Lord, we give you praise, we give you honor, Lord. Hallelujah. You are so loving, you are so kind. You did not repay us according to our iniquities, but surely as east is far from the west, so far have you removed the transgressions from us. Our sins who stood so tall in the light of your countenance, but you gathered them all together and you hurled them down in the depth of the ocean, and you remember them no more, Lord God. We thank you. We thank you for removing even the remembrance. Thank you for, Lord, cleansing us in the blood. Thank you for purifying us. Thank you for washing us and making us absolutely brand new. Thank you, Lord. With this brand new life, we come before you, Lord. Brand new heart. We come before you to worship you, to exalt you, to magnify you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless you. We bless you. We bless your name. Lord, I pray in the mighty name of Jesus that as the darkest days are unfolding upon the earth, Lord, we see such uncanny situation, such bizarre situation. We see such unprecedented instability in the nations, in terms of politics, in terms of economy, in terms of the very social fiber structure on which each society is standing. Lord, we see great cataclysmic signs happening. Seismic activities are rampantly growing. And Lord, epidemics and several kind of new diseases and pandemics are blasting the earth. And Lord, we also see great celestial signs that are pointing to the coming of the Lord Jesus of Nazareth. Bizarre things are happening in the constellations. They are all echoing that Jesus is coming. यीशु मसीह, तू जल्दी वापस आ रहा है. तू जल्दी वापस आ रहा है यीशु मसीह. तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा हो. हालेलुया. Lord, we bless you, bless you, bless you. Lord, we praise you, praise you, praise you. Lord, we glorify you. Hallelujah. We glorify you, glorify you, glorify you. Lord, we glorify you. Lord Jesus, I pray that you will open up your word. Lord, that your spirit will break the bread. And as, Lord, the bread is broken, I pray that the light will shine and light will pierce the darkness, Lord God. We give you praise. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. If you remember, I was teaching from Luke's Gospel, chapter number 4, beginning from verse 18 till verse 20th.
And this text was about Jesus coming to his own town of Nazareth, where he was raised up. And as it was his custom, he goes to the synagogue, and unto him was handed the scroll of prophet Isaiah. And he opened up at the place where it was written. लूका 4 की 18, 19 और 20 में लिखा है, यीशु मसीह यशाया नबी की किताब को खोलता है और वहाँ से पढ़ता है जहाँ लिखा है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज़ अपॉन मी बिकॉज ही हैथ अनॉइंटेड मी। हालेलुया। और मैंने आपको यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के 5 फाउंडेशनल एलिमेंट मैंने आपको बताए। 5 मिनिस्ट्रीज, 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज ऑफ द लॉर्ड जीसस। सबसे पहली बात थी साल्वेशन। यीशु मसीह कहते हैं प्रीच द गॉस्पल टू द पुअर एंड टू प्रोक्लेम द एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड। और मैंने आपको बताया शिमीटा क्या होती है। एवरी 7th ईयर ऑफ द रेस्ट इज़ कॉल्ड शिमीटा। 7वां साल जिसमें प्रभु अपने लोगों को विश्राम के लिए कहता था और पृथ्वी पे हल चलाने से रोकता था, उसे शिमीटा कहा जाता है। 7 साल की जब 7 शिमीटाज इकट्ठी होती हैं, 7 ईयर्स, फिर 7 ईयर, फिर 7 ईयर, फिर 7 ईयर, 7 बार 7 साल, तो मिला के बनते हैं 49 ईयर्स, 49 साल। और जब 50वां साल आता है उसे योवेल कहा जाता है हिब्रू में, जुबली का साल। और जब जुबली का साल आता है तब तुरियां फूकी जाती हैं पूरे इसराइल में, क्योंकि सब लोग आज़ाद हो जाते हैं। अगर किसी के घर में कोई बंधुआ गुलाम है, मजदूर है, गुलाम नौकर है, वो आज़ाद हो जाता है। अगर किसी के पास किसी की ज़मीन गिरवी रखी है तो वो छूट जाती है। अगर किसी ने किसी का उधार देना होता है तो वो ख़त्म हो जाता है। डेट कैंसिल हो जाते हैं। जो नौकर लोग होते हैं, स्लेव्स लोग होते हैं, वो आज़ाद हो जाते हैं। अगर किसी की लैंड मॉर्टगेज में पड़ी होती है तो वो आज़ाद हो जाती है। सब कुछ रेस्टोर हो जाता है, कोई किसी का कर्जदार नहीं रहता है। ये जुबली, योवेल जिसे हम बोलते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह जुबली का प्रचार करने के लिए आया, जुबली का, अर्थात परमेश्वर सबके कर्जे माफ़ कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर सबके बंधन जुए तोड़ रहा है। परमेश्वर अंधी आंखें खोल रहा है। परमेश्वर कोढ़ियों को शुद्ध कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर बंधनों में पड़े जकड़े लोगों को आज़ाद कर रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर अंधों को आंखें दे रहा है। परमेश्वर टूटे दिल वालों के दिलों को हील कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर डिलीवर कर रहा है, परमेश्वर रिस्टोर कर रहा है लोगों को। हालेलुया। और मैंने 5 फोल्ड मिनिस्ट्री आपको बताई। सबसे पहला जो फाउंडेशनल यीशु मसीह की सेवकाई की फाउंडेशनल एलिमेंट, बुनियाद है, वो है साल्वेशन, मुक्ति। दूसरा मैंने आपको बताया स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज़ अपॉन मी, खुदा का रूह यीशु मसीह के ऊपर है और खुदावंद यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देने आया है। यीशु मसीह की सेवकाई का सबसे पहला पहलू, सबसे महत्वपूर्ण पहलू था मुक्ति। दूसरा पहलू है पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा। तीसरा यीशु मसीह की सेवकाई का पहलू है हीलिंग, अंधों को बिनाई देना। हालेलुया। शारीरिक चंगाई, तीसरा पहलू यीशु मसीह का। चौथा पहलू यीशु मसीह की सेवकाई का है टू प्रोक्लेम लिबर्टी टू देम दैट आर ब्रूज्ड, उनके लिए आज़ादी की घोषणा करना जो ब्रूज किए गए हैं, घायल किए गए हैं। और पांचवा मैंने आपको एस्पेक्ट जिस पे मैंने डिटेल में बताया था वो था इमोशनल हीलिंग, डिलीवरेंस, और पांचवा था इमोशनल हीलिंग। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं टूटे दिल वालों के दिलों को जोड़ने आया हूं। आई हैव कम टू हील द ब्रोकन हार्टेड। हालेलुया। तो इमोशनल हीलिंग का मैंने एक पहलू आपको बताया था, ब्रोकन हार्ट, हाउ जीसस मेंट्स ब्रोकन हार्ट। और मैंने आपको बताई कौन कौन सी बातें हैं जो एक ब्रोकन हार्टेड इंसान के जीवन में पैदा होती हैं बिकॉज ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन की स्पिरिट कैसे मनुष्य के डीएनए में बैठी है। प्रत्येक मनुष्य जो इस पृथ्वी पे है उसके अंदर स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन काम कर रही है। और स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन मनुष्य के कैरेक्टर को, मनुष्य की साइकी को, सुखोए को, मनुष्य की सबकॉन्शियस को इस कदर प्रभावित करती है
कि मनुष्य के अंदर पर्सनैलिटी फ्लॉज क्रिएट करती है। हालेलुया। मैंने आपको बताया हम वी ऑपरेट not in our original nature but our nature at default because of the iniquity। तो ये कैसे कैसे हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, मैंने उसके विषय में आपको अलग अलग बातें बताई थी। ये एंगर पैदा करती है और इनसिक्योरिटी पैदा करती है, प्राइड पैदा करती है, घमंड, गुस्सा, क्रोध, आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, फिर इनसिक्योरिटी। मनुष्य अंदर से इनसिक्योर होता है और वो लोगों में अपनी एफर्मेशन ढूंढता है। वो चाहता है कि दूसरे उसे डिफाइन करें, अप्रूवल चाहता है लोगों की। कभी वो नहीं बनता जो उसे परमेश्वर यहोवा ने बनाया है। वो अपनी आइडेंटिटी लोगों के द्वारा एस्टैब्लिश करता है। आपको मालूम, ये संसार आपको एक फॉल्स आइडेंटिटी देता है जो ओरिजिनल नहीं है। दुनिया उसे ढूंढ रही है, उस फॉल्स आइडेंटिटी। जैसे यूथ को देखिए, जवानों को देखिए, कैसे इस दुनिया के अंदर अपनी आइडेंटिटी की तलाश कर रहे हैं। इस संसार में एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। जवान नशों के अंदर जाके एक अपनी यूनिक आईडी ढूंढते हैं, या सेक्सुअल इमोरालिटी में जाके नाइट क्लब्स और हर तरह के गंदे बुरे काम करके अपनी एक आईडी ढूंढते, अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। संसार के प्लेजर में अपनी आईडी ढूंढते हैं। कुछ लोग अपने करियर में अपनी आईडी ढूंढते हैं। आपको मालूम, आप जो करते हो, अगर आप इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर, दैट्स नॉट हु यू आर। योर प्रोफेशन डजंट डिफाइन यू। यू आर व्हाट गॉड क्रिएटेड यू टू बी। यू आर, योर ओरिजिनल आईडी इज व्हेन यू डिस्कवर गॉड विद इन यू। जब आप परमेश्वर को तलाशते हो, परमेश्वर को ढूंढते हो, तब आपको आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी मिलती है। आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी आपके प्रोफेशन में नहीं है। आप वो हो जो परमेश्वर ने आपको बनाया है, और जब तक आप उसे डिस्कवर नहीं करते, आपको अपनी ओरिजिनल पहचान नहीं मिलती। हालेलुया। और मैंने आपको बताया कि इनसिक्योर लोग जो होते हैं वो हमेशा रिकग्निशन ढूंढते हैं, दूसरों से अप्रिसिएशन ढूंढते हैं, और वो बहुत टची होते हैं, बहुत टची, बहुत सेंसिटिव, ओवरली सेंसिटिव होते हैं। उनको बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं कि मुझे तो आपने अप्रिशिएट नहीं किया है, मुझे तो आपने रिकग्नाइज नहीं किया, क्योंकि उन्हें ह्यूमन रिकग्निशन चाहिए होती है। और ये सब चीज़ें हमारे जीवन में पैदा होती हैं, दैट बेसिक रिजेक्शन, जो रिजेक्शन का डीएनए हमारे अंदर है। प्राइड पैदा होता है। प्राइडफुल व्यक्ति हमेशा मूवर एंड शेकर बनना चाहता है, बहुत बात करता है। प्राइडफुल व्यक्ति हर चीज में अपनी ओपिनियन देना चाहता है। या फिर रिजेक्शन आपके अंदर इंडिपेंडेंस पैदा करती है। आप कहते हो आई विल जस्ट डू इट माई सेल्फ। यू डोंट लाइक टू वर्क इन अ टीम। You want to shine in your own glory। एक अलग किस्म की इंडिपेंडेंस। फिर मैंने आपको बताया कि जिनके अंदर रिजेक्शन होती है वो लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। आप उनसे मजाक भी नहीं कर सकते। उनको ऐसे लगता है उनकी ऑनर को, उनकी असमिता को, उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। तो ये ब्रोकन हार्टेड, जब दिल टूटता है, ब्रोकन हार्टेड होने की वजह से क्या क्या चीज़ें पैदा होती हैं। दूसरी मैंने आपको चीज़ बताई थी, मैंने बताया था कि 2 एलिमेंट में मैं इसे डिवाइड करूँगा यीशु मसीह की 5-fold मिनिस्ट्री को। यीशु मसीह कहते हैं आई हैव कम टू मेंड द ब्रोकन हार्ट्स, और दूसरी बात यीशु मसीह क्या कहते हैं, आई हैव कम टू सेट एट लिबर्टी देम दैट आर ब्रूज्ड। वो जो कुचले गए हैं उनको मैं आज़ादी देने आया हूँ। अब मैं दूसरे सेगमेंट पे आपसे बात करूँगा। यीशु मसीह कहते हैं जो कुचले गए उनको मैं आज़ादी देने आया हूँ, और जिनके दिल टूटे हैं, ब्रोकन हार्टेड हैं, शैटर्ड। मैंने आपको बताया था सुन ट्रिबो
कादिया ग्रीक वर्ड है, सुन त्रिबो कादिया। सुन त्रिबो का मतलब होता है छोटे छोटे पीसों में टूटा हुआ, और कार्दिया का मतलब दिल, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ दिल, बिखरा हुआ दिल। उसे यीशु मसीह दोबारा खड़ा करते हैं, उसे यीशु मसीह हील कर देते हैं, रेस्टोर कर देते हैं, और उसे ब्रांड न्यू कर देते हैं। दूसरी चीज़ जो यीशु मसीह कहते हैं, आई हैव कम टू सेट एट लिबर्टी देम दैट आर ब्रूस्ड। जो घायल किए गए हैं उनको मैं क्या करने आया हूँ, टू सेट एट लिबर्टी। जो घायल हैं अंदर से, मैंने कल बताया था आपको कि कई बार आपको ब्रूज होता है, ब्रूज जो होता है वो डीप होता है, वूंड नहीं होता है, वो एक ज़ख्म होता है और एक ब्रूज होता है। ब्रूज आपके अंदर होता है, नीचे स्किन के बहुत नीचे होता है, शायद जहाँ टिश्यूज़ होते हैं, मसल्स होते हैं, टेंडन होते हैं, लिगामेंट होते हैं, वहाँ पे वो वूंड होता है। कई बार बाहर से स्किन हील हो जाती है लेकिन अंदर ज़ख्म होता है। जब कभी उसे हल्का सा दबाया जाता है तो आपके दर्द पैदा होती है, क्योंकि अभी आपके अंदर का घाव हील नहीं हुआ। तो यीशु मसीह क्या बड़ी ख़ास बात कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं आई हैव कम टू सेट एट लिबर्टी देम दैट आर ब्रूज्ड। सुने ध्यान से, हिब्रू में बहुत प्रोफाउंड वर्ड है आइज़ाया की बुक में। यीशु मसीह कहते हैं मैं उनको जो अंदर से नीचे से घायल हैं उन्हें आज़ाद करने आया हूँ, सेट फ्री। आपको मालूम क्यों? क्योंकि जो लोग ब्रूज्ड हैं, अंदर से इंटरनली वुंडेड हैं, जो इंटरनली ब्लीड करते हैं, वो लोग बॉन्डेज में रह सकते हैं, वो लोग शैतान की प्रिजन में रहते हैं, वो लोग एनस्लेव्ड रहते हैं चेन्स और जंजीरों के साथ। उनके जीवन का अंदरूनी व्यक्तित्व, जो इनर पर्सनैलिटी है, उसको चेन करके रखता है सेटन। दे हु आर ओप्रेस्ड, दे हु आर ब्रूज्ड एंड दे हु आर क्रश्ड, जो अंदर से क्रश हो चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आप क्रश हुए अपनी लाइफ में? हैव यू एवर बीन क्रश्ड इन योर लाइफ? हैव यू एवर बीन डीपली ब्रूज्ड ऑन द इनसाइड? हैव यू बीन गिवन डीप वुंड्स on the inside, maybe by your loved ones, perhaps by the circumstances, or maybe the environment in which you were raised up, or you were crushed because of the loss of marriage, because of the loss of relationship, because of a loss of some loved ones in your family. कुछ हुआ आपके साथ ऐसा कि आप क्रश हुए? आपको मालूम, जब मनुष्य अंदर से क्रश होता है, यीशु मसीह कहते हैं मैं उन्हें लिबर्टी देने आया हूँ। जब मनुष्य अंदर से क्रश होता है, इंटरनली ब्लीड करता है, तो शैतान आता है मनुष्य के पास और उसे एक वरदान देना चाहता है शैतान, वो है अनफॉरगिवनेस का, माफ़ ना कर। कैसे शैतान आके बाम लगाता है इंसान को जो अपने जीवन में बहुत वुंडेड होता है अंदर से, और क्रश्ड होता है अंदर से, और बुरी तरह अंदर से ओप्रेस्ड होता है, और ब्रूजेस होते हैं उसके अंदर, तो वो लोनली हो जाता है। और शैतान आके उसको कैसे मरहम लगाता है, उसको बोलता है तेरी परिस्थितियाँ बहुत वैलिड हैं, यू डोंट हैव टू फॉरगिव, you don't forgive. Those people were bad, they did bad things to you, they were absolutely unfair, they shouldn't have done what they did to you, so you are not going to forgive them. तो अनफॉरगिवनेस लेकर आता है। पतरस यीशु मसीह से आके बड़ा एक लेजिटिमेट सवाल करता है कि मैं कितनी बार माफ़ करूं अपने भाई को। तो क्योंकि रब्बी लोग उस समय से खाते थे, जूइश रब्बी, 3 टाइम्स, कि 3 बार माफ़ कर दो। तो पीटर थोड़ा लिबरल हुआ, पीटर यीशु मसीह को थोड़ा फिराख दिली दिखाता है और यीशु मसीह से कहता है 7 टाइम्स माफ़ करूं दिन में? तो यीशु मसीह कहते हैं 70 टाइम्स 7, 70 टाइम्स 7। और आपको मालूम, यीशु मसीह एक स्टोरी सुनाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय में। फॉरगिवनेस के ऊपर यीशु मसीह की बेमिसाल शिक्षा है, बेमिसाल अद्भुत शिक्षा है। आपको मालूम, मसीहत में, मसीह यीशु की देह में सबसे बड़ा रोग क्या है? अनफॉरगिवनेस। लोग क्षमा नहीं करते, मसीह लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं करते।
चर्चेस के अंदर लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, शेपर्ड शीप को क्षमा नहीं करते, शीप शेपर्ड को क्षमा नहीं करती। अनफॉरगिवनेस की रैम्पेंट बीमारी है मसीह की देह में। तो यीशु मसीह से पीटर कहता है 7 टाइम्स, तो यीशु मसीह बोलते हैं 70 × 7 या 7 × 70, अर्थात यीशु मसीह अपने चेले पतरस को बताते हैं अनफॉरगिवनेस इज forgiveness is unlimited. You have to continue to forgive. और यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय में एक स्टोरी सिखाते हैं कि एक व्यक्ति है, उसने किसी का बहुत बड़ा कर्जा देना है, किसी बहुत रिच आदमी का बहुत बड़ा कर्जा देना है। अगर आप उस कर्जे को कैलकुलेट करेंगे ना आज की रकम में, $52 मिलियन का कर्जा देना उसने, $52 मिलियन। अगर आज उसको कैलकुलेट करेंगे आप, इट टर्न्स आउट टू बी $52 मिलियन का कर्जा देना है, और ये व्यक्ति उसको कर्जा दे नहीं सकता। तो जिसका कर्जा देना है वो बहुत काइंड हार्टेड है, वो बहुत दयालु है, जेनरस है, लार्जर देन लाइफ उसका हार्ट है। सो दैट पर्सन summons this man who owes him an incredible debt, and that person, since he is very generous and kind at heart, so he calls this man and tells him, well, I pardon you lavishly, you absolutely owe me nothing. So such a huge debt is forgiven with a single stroke. I believe this man must be jumping and dancing right over there, क्योंकि उसका सारा कर्जा उस स्वामी ने क्षमा कर दिया। एंड ही सेड यू आर फ्री, गो फ्री एंड एन्जॉय। तो ये व्यक्ति आज़ाद हो जाता है, इसका इतना बड़ा डेट क्षमा हो जाता है। सोचिए कितनी खुशी से ये भर गया होगा। लेकिन जब ये रास्ते पे जा रहा है तो इसे एक व्यक्ति दिखाई देता है, ए मैन हु ओड दिस मैन सम मनी। इस व्यक्ति को कुछ बाकी है उसका देना, और जो इस व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति ने कर्जा देना है वो आज के लिहाज से इज़ मेयरली $44। इसका 52 मिलियन माफ़ हो गया है, और जो इसने देना है दैट इज़ मेयरली $44। तो ये व्यक्ति क्या करता है? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 चैप्टर की 32 वर्स आप पढ़िएगा। तो वहाँ पे लिखा है, मत्ती 18 की 32 में पढ़िएगा। ये व्यक्ति जिसका इतना बड़ा कर्जा $52 मिलियन कर्जा पेड ऑफ हो गया, इसके मालिक ने कहा यू ओ मी नथिंग, जस्ट गो एंड एन्जॉय योर लाइफ। लेकिन इसको एक व्यक्ति मिला जिसने इसके $44 देने थे। उसने पुलिस को बुलाया और उस व्यक्ति को जेल में डलवा दिया जिसने इसका $44 का कर्जा देना था। तो देखिए अब क्या कहते हैं यीशु मसीह, सुनिए ध्यान से। दिस इज जीसस द ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर दैट एवर वॉक्ड ऑन दिस प्लेनेट। ही इज शेयरिंग दिस स्टोरी, और फॉरगिवनेस का प्रोफाउंड लेसन यीशु मसीह सिखा रहे हैं। और ये कहानी यीशु मसीह खुद अपने मुंह से अपने चेलों को सिखा रहे हैं। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ इसका 28 वर्स, मत्ती 18 का 28, मैथ्यूज 18 वर्स नंबर 28। बट द सेम सर्वेंट वेंट आउट एंड फाउंड वन ऑफ हिज फेलो सर्वेंट्स विच ओड हिम an 100 pence, and he laid hands on him and took him by the throat, saying, pay me that thou owest. देखते हैं आप, ungrateful man loaded with, देखिए कैसा व्यक्ति है ये, अनग्रेटफुल की स्पिरिट से भरा हुआ, लोडेड विद द स्पिरिट ऑफ अनग्रेटफुलनेस। क्या करता है? उस व्यक्ति को जिसने सिर्फ इसके $44 देने हैं, उसको थ्रोट से पकड़ लेता है, थ्रोट से, और क्या कहता है? उसे कहता है, पे मी दैट दाउ ओएस्ट, मुझे दे जो तेरा मुझे बनता है। अभी इस व्यक्ति को कितनी बड़ी क्षमा मिली है? $52 मिलियन का डेट इसका पे हो गया है।
52 मिलियन के सामने $44 की कोई वैल्यू नहीं है, $44 की। लेकिन ये उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है अभी मुझे दे। एंड हिज फेलो सर्वेंट फेल डाउन एट हिज फीट एंड besought him saying, हैव पेशेंस विद मी एंड आई विल पे दी ऑल। वो उसके पाँव पे गिर जाता है और मिन्नत करता है, दरख्वास्त करता है उसके आगे, और उससे कहता है गिव मी लिटिल टाइम, आई विल पे ऑल योर डेट। मैं तेरा सारा का सारा कर्जा वापस कर दूंगा। तो क्या लिखा है 30th वर्स में, एंड ही वुड नॉट, पर इसने उसकी एक भी सुनी नहीं। ये है भाइयों और बहनों चर्च का हाल। चर्च के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके 52 मिलियन क्षमा कर दिए प्रभु ने, लेकिन वो $44 नहीं माफ़ कर रहे। कुछ ऐसे भी हैं जो वापस लौटाना नहीं चाहते, उनके हार्ट सही नहीं है, दे आर नॉट ऑनेस्ट, दे डोंट वॉक इन इंटेग्रिटी। वचन बताता है अगर आपने लोन लिया यू पे इट बैक। कलाम सिखाता है कि आपको बिल्कुल फेयर होना है परमेश्वर के आगे। परमेश्वर के आगे स्मरण करना, अगर किसी ने आप पे दया की, करुणा की है, यू नेवर फॉरगेट दोज डेज, दोज टाइम्स। ऐसी भी है कि पीपल डोंट पे बैक, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी सुना रहे हैं। क्या स्टोरी सुना रहे हैं? फॉरगिवनेस की, कि 52 मिलियन डॉलर उसका डेट क्लियर हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहा है, $44 माफ़ नहीं कर रहा है। और वो क्या करता है, जबकि वो व्यक्ति उसके आगे मिन्नत भी करता है कि मैं वापस लौटाऊंगा, प्लीज़ गिव मी सम टाइम। तो वो क्या करता है, एंड ही वुड नॉट बट वेंट एंड कैस्ट हिम इनटू द प्रिजन, वर्स नंबर 30। ही वेंट एंड कैस्ट हिम इनटू द प्रिजन टिल ही शुड हैव पे द डेट। उसको जेल में डाल दिया और कहा तू जेल में रहेगा जब तक तू मेरा कर्जा वापस नहीं कर। अब देखिए कितनी इलॉजिकल बात है, कितनी स्टूपिड डम बात है इस व्यक्ति की। इसने उसको गले से पकड़ा और जेल में डलवा दिया। अब अगर वो इंसान जिसने इसके $44 देने हैं, अगर वो जेल में चला गया, हाउ विल ही पे हिम बैक? अगर वो जेल से बाहर रहेगा तो वो कमाएगा और कमा के इसका कर्जा वापस करेगा, लेकिन इसने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। हालेलुया। तो देखें आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है वर्स नंबर 31, सो व्हेन हिज फेलो सर्वेंट्स सॉ what was done, they were sorry and came and told their lord all that was done. Then his lord, after he had called him and said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt because thou desiredst me. मैंने तेरे सारे कर्जे को, इतने बड़े कर्जे को मैंने क्षमा कर दिया। क्या लिखा है यहाँ पे, क्योंकि तूने मेरे से मिन्नत की तो मैंने तेरा सारा कर्जा क्षमा कर दिया। शुड नॉट दाउ ऑल्सो हैव कंपैशन ऑन दाई फेलो सर्वेंट इवन एज आई हैड पिटी ऑन दी। स्वामी कहता है कि मैंने तेरा मिलियंस ऑफ डॉलर, $52 मिलियन क्षमा कर दिए, तो तुझे भी $44। अगर आपको इतना बड़ा डेट कैंसलेशन मिला है तो आपको आगे भी डेट कैंसलेशन दूसरों को ऑफ़र करना है। हालेलुया। तो स्वामी क्या कहता है? स्वामी कहता है, शुडस्ट नॉट दाउ ऑल्सो हैव कंपैशन ऑन दाई फेलो सर्वेंट इवन एज आई हैड पिटी ऑन दी। दिस इज द हार्ट ऑफ गॉड। गॉड वॉन्ट्स अस टू ट्रीट अदर्स द वे ही ट्रीटेड अस। लेकिन आपको बहुत ऑनेस्ट होना है प्रभु के आगे। यू कैनॉट अफोर्ड टू नॉट पे बैक योर डेट्स, यू हैव टू रीड द वर्ड। मोजेस की फर्स्ट 5 बुक्स पढ़ें, उनमें क्या लिखा है। कोई डेट लेता है और लौटाता नहीं है तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर, बिब्लिकल प्रिंसिपल्स। बाइबल में लिखा है, राइचियस मैन विल ऑलवेज पे बैक। A man who loves the Lord, a man who fears the Lord, a man who walks in the ways of the Lord, he will remember that somebody did good in those days and helped me out and blessed me and sowed financially in me. Now I must pay back.
एक धर्मी बंदा ये बात हमेशा याद रखेगा, जो प्रभु के वचन में चलता है, प्रभु को जानता है। और जो प्रभु के मार्गों में नहीं चलता है, जो प्रभु से नहीं डरता है, जो प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार जीवन नहीं बिताता, वो किसी से लेगा कर्जा और उससे सहायता लेगा, बाद में उसकी बुराई करेगा वो। मैंने देखा ऐसा अपने जीवन में होते हुए कि मैंने बहुत सारे लोगों की सहायता की, बहुत सारा पैसा लगाया लोगों की लाइफ में। जब वो बेल आउट हो गए, उन्होंने वापस तो लौटाना दूर बल्कि बुराई करनी शुरू की। तो प्रभु ये भी देख रहा है भाई और बहनों, स्वर्ग में बैठा, ही इज सीइंग एवरीथिंग। तो क्या कहता है प्रभु यहाँ पे? प्रभु कह रहा है कि कंपैशन, करुणा, दया, लेकिन करुणा, दया, कंपैशन का आपने नाजायज फायदा नहीं उठाना। हालेलुया। तो प्रभु कहता है करुणा, दया। तो क्या कहता है प्रभु 34 वचन में? एंड हिज लॉर्ड वाज रॉथ एंड ही डिलीवर्ड हिम टू द टॉर्मेंटर till he should have paid all that was due unto him। तो स्वामी ने क्या किया? उस स्वामी ने जिसका उसने $52 मिलियन क्षमा कर दिए थे, उसने उसको पकड़वाया। वो उससे गुस्से में हुआ और उसने उसे पकड़वाया और किसके हाथ में सौंप दिया? टॉर्मेंटर के हाथ में। किसके हाथ में सौंप दिया? टॉर्मेंटर। मेरे पीछे बोलिएगा, इन हुज हैंड डिड ही डिलीवर हिम? इन द हैंड्स ऑफ द टॉर्मेंटर। आपको मालूम है टॉर्मेंटर कौन है? हु आर दीज टॉर्मेंटर्स? बता सकता है कोई मुझे? यहाँ पे लिखा है 34 वचन में, लूका 18 के 34 में, एंड हिज लॉर्ड वाज रॉथ एंड ही डिलीवर्ड हिम टू द टॉर्मेंटर्स। सताने वालों के हाथ में, शायद हिंदी में लिखा है, जल्लादों के हाथ में। आपको मालूम है टॉर्मेंटर कौन है? ये टॉर्मेंटर है ईवल स्पिरिट्स, ये टॉर्मेंटर हैं डीमंस, ये टॉर्मेंटर हैं बदरुएं, ये टॉर्मेंटर हैं शैतानी आत्माएं। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर शैतानी आत्माओं के हाथ में उस व्यक्ति को सौंप देता है। मैंने आपको बताया कि 1 शमूएल 19 अध्याय के 9 वचन में, जब प्रभु ने देखा कि शाऊल जो है, शाऊल का हृदय बदला नहीं। परमेश्वर ने शाऊल को 40 वर्ष दिए, उसे राजा बनाया, बहुत ऊंची पदवी दी। परमेश्वर ने चाहा कि वो उसके मार्गों का खोजी हो। परमेश्वर ने चाहा कि शाऊल यहोवा से प्रीति करे। परमेश्वर ने चाहा कि शाऊल यहोवा का आराधक हो। परमेश्वर ने चाहा कि शाऊल यहोवा के वचनों को पढ़ने वाला, समझने वाला, जानने वाला, यहोवा की व्यवस्था के अनुसार चलने वाला एक धर्मी व्यक्ति बने। लेकिन वो बना नहीं, वो बना नहीं। उसको पवित्र आत्मा मिला था, वो भविष्यवाणियां भी करता था, लेकिन क्या हुआ? वो पवित्र आत्मा उसको छोड़ के चला गया। कब उसे पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया? पवित्र आत्मा भाई और बहनों दबे पांव लोगों को छोड़ के चला जाता है। जब पवित्र आत्मा आता है तो आग उतरती है। जब पवित्र आत्मा आता है तो आंधी का स्वर आता है और वो जगह भर जाती है आंधी के गुंजन से। जब पवित्र आत्मा आता है पराक्रमी रीति से आता है। पूरी दुनिया देखती है कि किसी व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा आया, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गया, वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगा, वो पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा पाया और परमेश्वर उसके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम करने लग पड़ा। उसके द्वारा अद्भुत चंगाइयाँ और चिन्ह प्रकट होने लगे। जब पवित्र आत्मा आता है आपको पूरी दुनिया देखती है और आप चमकने लगते हो, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाते हो। उसके बाद घमंड शैतान ले आता है आपके अंदर और आप सेहरा अपने माथे पे टिकाने लगते हो। आप सोचते हो मेरे कारण मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रेरित हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं तो पापा डैडी कहलाने के लायक हूँ, मुझे पापा डैडी बोलो क्योंकि मैं तो महान हूँ, मेरे द्वारा तो एशिया की सबसे बड़ी चर्चें बनी हैं, विश्व में सबसे बड़े काम हुए हैं, जो काम मेरी सेवकाई में होते कहीं और नहीं होते। ऐसी बातें आपके द्वारा बोलेगा आके इब्लीस, और आप अपने आप को विलक्षण बना के पेश करोगे लोगों के आगे कि मेरे जैसा कोई नहीं है, हम अलग हैं, हम बाकी तो छोटे छोटे प्रचारक, हम तो विशेष हैं। समझ लीजिए कि शैतान का बीज आपकी आत्मा में डाला जा रहा है, दिखावे का,
अहंकार का, प्रसिद्धि का, लोगों में फेमस होने का, सेल्फ प्रमोशन का, अपने आप को उघाड़ने का, परमेश्वर की महिमा को चोरी करने का। ये विनाश के बीज हैं। सुन रहे हैं आप मेरी बात? ये विनाश के बीज हैं। ये क्रूस का मार्ग नहीं है, ये उसका पथ नहीं है जो अपने आप का इनकार करता है और केवल प्रभु का अंगीकार करता है। ये उसका पथ नहीं है। आपको मालूम, पवित्र आत्मा जब छोड़ के जाता है, पवित्र आत्मा आपकी नमोशी नहीं करवाता लोगों के आगे। पवित्र आत्मा क्वाइटली छोड़ के चला जाता है। समसून एक औरत की लैप में पड़ा हुआ था, गोद में। उसे नहीं मालूम कि अब की बार पवित्र आत्मा छोड़ गया मुझे। लेकिन समसून को जब पवित्र आत्मा छोड़ गया, वो चिल्लाया प्रभु के आगे, वो रोया प्रभु के आगे, वो बिलका प्रभु के आगे, और प्रभु से कहा एक बार फिर मुझे मसा कर दे पवित्र आत्मा से। और उसने अपनी मौत में ज़्यादा फलिश्तियों को मारा जितने उसने अपने जीवन काल में मारे, क्योंकि समसून ने तौबा की। लेकिन जो शाऊल है, इसने तौबा नहीं की। शाऊल को केवल सत्ता चाहिए थी। जब पहाड़ पे सैमुएल ने उसे कहा कि मैं तो तेरे हाथ से राज्य छीन लिया गया है, वो चद्दर फट के 2 भाग हो गई, यहोवा ने तुझे त्याग दिया है, तो सैमुएल क्या कहता है? सैमुएल से शाऊल क्या कहता है? सैमुएल के चरणों में गिर के शाऊल तौबा नहीं करता है, रोता नहीं है, प्रभु के आगे बिलखता नहीं है, प्रभु के आगे गिड़गिड़ाता नहीं, प्रभु मुझे ना छोड़, पवित्र आत्मा मुझे ना त्यागिए, प्रभु मुझ पे दया कीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा धर्म माफ़ कर दीजिए, मेरा पाप मुझे बख्श दीजिए, प्रभु मुझे ना त्यागिए। ये नहीं कहता है, बल्कि ये कहता है शाऊल सैमुएल से कि पहाड़ से सैमुएल कह रहा है मैं जा रहा हूँ तुझे छोड़ के। उस शाऊल कहता है मुझे छोड़ के मत जा, क्योंकि पहाड़ के नीचे इस्राएली प्रजा खड़ी है, उन्हें पता लग जाएगा कि परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है, इसलिए मुझे छोड़ के मत जा, मुझे अपने संग संग लेके जा। शाऊल को क्या चाहिए था? ह्यूमन अप्रूवल चाहिए थी। लोगों की दृष्टि में भला बनना चाहता था कि लोग कहीं मेरा त्याग ना कर दें राजा होने के नाते। शाऊल को केवल गद्दी प्यारी थी, शाऊल को राज सिंहासन प्यारा था, शाऊल को राजपाट से प्रीति थी, शाऊल को जो दुनिया के खजाने थे ना, उसके राज के खजाने, जो गरिमा थी, यश था, वैभव था, जो मान सम्मान था राजा का, वो उसे प्यारा था, प्रभु प्यारा नहीं था। वरना वो गिड़गिड़ाता और रोता और प्रभु से कहता मुझे मत त्याग। पवित्र आत्मा उसे छोड़ के चला गया क्योंकि वो मूर्ख धूर्त व्यक्ति था। और देखिए इससे भी बुरा बात क्या हुई शाऊल के साथ? पवित्र आत्मा छोड़ गया और पवित्र आत्मा ने जो घर खाली किया वो दुष्ट आत्मा ने भर दिया। दुष्ट आत्मा ने भर दिया। कैसे भर दिया? क्योंकि वचन में लिखा है यहोवा ने दुष्ट आत्मा भेजा। आप कहेंगे नहीं नहीं जी, पवित्र आत्मा तो ऐसा काम नहीं करता, प्रभु तो ऐसा काम नहीं कर सकता, प्रभु तो धर्मी है, प्रभु तो। आप वचन को नहीं जानते हो, आप परमेश्वर के काम करने के मार्गों को नहीं जानते हो। 1 सैमुएल 19:9 पढ़ लीजिएगा। 1 सैमुएल 19 अध्याय का 9 वचन, वहाँ पे लिखा है ए डिस्ट्रेसिंग स्पिरिट केम फ्रॉम द लॉर्ड टू इन्फ्लिक्ट सॉल द किंग। एक बदरू यहोवा की ओर से आके शाऊल को सताती थी। बदरू आ जाती है जब घमंड अहंकार से लोग भर जाते हैं। पवित्र आत्मा क्वाइटली छोड़ जाता है उन्हें और उनके अंदर शैतानी आत्मा वास करता है आके। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा टॉर्मेंटर आएंगे। ये टॉर्मेंटर हैं, बदरुएं। सुन लीजिए, टॉर्मेंट करने वाली रूएं हैं। मत्ती 18 अध्याय के अंदर लिखा है 34 वचन में, द लॉर्ड वॉज रॉथ एंड डिलीवर्ड हिम टू द टॉर्मेंटर। प्रभु गुस्से में आ गया और उसने टॉर्मेंटर के हाथ में सौंप दिया, बदरुओं के हाथ में सौंप दिया इस बंदे को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बदरुएं टॉर्मेंट कर रही हैं। टॉर्मेंटर के हाथ में उनका जीवन, और यहोवा ने सौंपा उनका जीवन टॉर्मेंटर के हाथ में। शैतान ने नहीं सौंपा, यहोवा ने सौंपा है। आपको मालूम, जब जब इस्राएल यहोवा को त्यागता था, यहोवा के हुक्मों को, यहोवा की विधियों को,
यहोवा की वाचा को पाँव के नीचे कुचल देता था, तब तब यहोवा क्या करता था? तब तक यहोवा इज़राइल को अन्य जातियों के हवाले कर देता था। अन्य जातियां इज़राइल को सताती थीं, लताड़ती थीं, उनके देश पे आक्रमण करती थीं, उन्हें लूट के ले जाती थीं और कई बार उनको असीरी में गुलाम बना के ले जाती थीं। ये काम कौन करता था? यहोवा करता था। किस लिए करता था यहोवा ये काम? क्यों अपनी प्रजा को दुश्मनों के हवाले कर देता था? क्यों उन अन्य जातियों को, जेंटाइल्स को, पेगन्स को, मूर्ति पूजक राष्ट्रों को उभार के लाता था? वो इज़राइल को गुलाम बना के ले जाते थे और सताते थे। क्यों? इसलिए करता था यहोवा, ताकि इस्राएली प्रजा तौबा करे, पश्चाताप करे और प्रभु की ओर मुड़े। टॉर्मेंटर के हवाले इसलिए किया जाता है, इसलिए नहीं कि प्रभु आपको नाश करना चाहता है, बल्कि इसलिए कि आपकी आंखें खुल जाएं। यीशु मसीह कहते हैं, लूका मत्ती रची सुसमाचार 18 अध्याय का 35 वचन सुन लीजिए गौर से जरा। लूका 18 का 35 सुने ध्यान से। सो लाइकवाइज शैल माई हेवनली फादर डू ऑल्सो अनटू यू। सुने क्या कहता है यीशु मसीह? So likewise shall my heavenly Father do also unto you। यीशु मसीह कहता है, जैसे बदरुओं के हवाले कर दिया उसको, दुष्ट आत्माओं के हवाले, और जेल में डाल दिया गया उस बंदे को जिसने दूसरे का कर्जा क्षमा नहीं किया, उस स्वामी ने डाल दिया, ऐसे ही मेरा स्वर्गीय पिता भी करेगा। लूक 18:35 पढ़िए। So likewise shall my heavenly Father do also unto you if ye from your hearts forgive not everyone his brother their trespass। अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो ये किया जाएगा आपके साथ, आपको टॉर्मेंटर के हवाले किया जाएगा। वो आपको टॉर्मेंट करेंगे, आपका पीस चला जाएगा, आपका सुकून चला जाएगा, आपके अंदर इमोशनल हीलिंग नहीं होगी, कोई भी इमोशनली सिक हो जाएंगे आप, साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तरह तरह की साइकिक बीमारियां लोगों को क्यों घेर लेती हैं? कई तरह के साइकिक डिसऑर्डर हैं लोगों को, साइकिक बीमारियां, रात को सो नहीं पाते लोग अच्छी तरह, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने खुद उनको टॉर्मेंटर के हवाले किया हुआ है, ईवल स्पिरिट के हवाले किया हुआ है। शाऊल के ऊपर ईवल स्पिरिट आती थी फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? पहला सैमुएल 19:9 में लिखा है, एन ईवल स्पिरिट यूज्ड टू कम एंड ट्रबल सॉल फ्रॉम द लॉर्ड। क्योंकि वो अनफॉरगिवनेस से भरा था, अपने दामाद दाऊद को मारना चाहता था, जेलस था, एंग्री था, बिटर था। कई बातें हैं ये जो मैं भी आपको बताऊंगा। अगर आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय का 5 वचन, एक बहुत क्लासिक केस है यहाँ पे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं चाहता हूँ आप खुद वचन पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों 5 का 5। प्रेरित पौलुस यहाँ पे कुरिन्थियों की कलीसिया से बात कर रहा है। एक बहुत अद्भुत केस है यहाँ पे। प्रेरित पौलुस कह रहा है, कोई व्यक्ति है जो सेक्सुअल इमोरालिटी में इंडल्ज है, जो जनाकार है, हरामकार है, अलग अलग तरह की हरामकारी करता है, सेक्सुअल इमोरालिटी में, अडल्ट्री में, फर्निकेशन में, गंदे घिनौने कामों में बुरी तरह जकड़ा हुआ एक इंसान है कुरिन्थियों की कलीसिया में। पहला कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 5 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ आप इसका खुद अध्ययन कीजिएगा। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय का 5। सुने प्रेरित पौलुस क्या कहता है। इस व्यक्ति के लिए कहता है जो सेक्सुअली परवर्टेड है या गंदे काम करने वाला, शरीर की वासना में जैसे जल रहा है, शारीरिक वासना की गर्म आग में जल रहा है ये व्यक्ति। तो प्रेरित पौलुस क्या कहता है? टू डिलीवर सच वन अनटू सेटन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लैश दैट हिज स्पिरिट मे बी सेव्ड इन द डे ऑफ द लॉर्ड जीसस। प्रेरित पौलुस कह रहा है ऐसे व्यक्ति को जो जनाकार है, सेक्सुअल इमोरालिटी में गिरा हुआ है, कि इस व्यक्ति को शैतान के हाथ में सौंप दिया जाए, ताकि शैतान इसे टॉर्मेंट करे, इस बंदे को शैतान के हाथ में सौंप दो इसको। तो शैतान क्या करेगा? लिखा है फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज फ्लैश, उसके शरीर का नाश करेगा शैतान जो सेक्सुअल इमोरालिटी करता है। प्रभु ऐसे सौंपता था इज़राइल को उनके शत्रुओं के हाथ में, ताकि वो पाप, अधर्म, बदकारी जो वो करते हैं वो तौबा करें।
रिपेंट करें, प्रभु की ओर मुड़ आएं, अपने गंदे घिनौने काम छोड़ दें। प्रभु कहता अगर तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हें टॉर्मेंट किया जाएगा, बदरुएं टॉर्मेंट करेंगी और आपका जीवन मिजरेबल हो जाएगा, मिजरेबल। और प्रभु आपको छुड़ाएगा नहीं, कभी नहीं छुड़ाएगा। प्रभु आपको तब छुड़ाएगा जब आप फॉरगिव करेंगे, क्षमा करेंगे, माफ़ करेंगे, तब प्रभु आपको छुड़ाएगा। याकूब की पत्री, जेम्स चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 7, याकूब की पत्री 4 अध्याय के 7 वचन में क्या कहता है परमेश्वर का दास? परमेश्वर का दास कहता है, सबमिट योर सेल्फ अनटू गॉड एंड रेसिस्ट द डेवल। अपने आप को परमेश्वर के चरणों में अधीन कर दो। जब आप परमेश्वर के चरणों में अपने आप को अधीन करोगे तब ही केवल आप शैतान का सामना कर सकोगे। बहुत से मसीहों के अंदर रत्ती भर भी ताकत नहीं है शैतान का सामना करने की। आपको मालूम क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रभु के चरणों में सौंपा ही नहीं है, परमेश्वर के चरणों में सबमिट किया ही नहीं अपने जीवन को, इसलिए वो शैतान का सामना नहीं कर सकते। आप शैतान का सामना तब कर सकते हो जब आपका जीवन यीशु मसीह के चरणों में पूरी तरह से समर्पित किया हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के नीचे, यीशु मसीह के चरणों में सबमिट किया हुआ जीवन शैतान के लिए एक स्केयर है। शैतान डरता है ऐसे जीवन से। तो जब आप प्रभु की ओर मुड़ेंगे, हालेलुया, तो प्रभु क्या करेगा? आपको शैतान के ऊपर जयवंत करेगा। अब देखिए, मैंने आपको पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय के 5 वचन में एक व्यक्ति के विषय में बताया, जिसके विषय में प्रेरित पौलुस कहता है सरेंडर सच अ पर्सन इनटू द हैंड्स ऑफ द डेवल सो दैट द डेवल में डिस्ट्रॉय हिज फ्लैश बट हिज स्पिरिट माइट बी सेव्ड। प्रेरित पौलुस बताता है ऐसे व्यक्ति को शैतान के हवाले करो जो सेक्सुअल इमोरालिटी में है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों, टर्न ओवर टू 2 Corinthians चैप्टर नंबर 2, टर्न ओवर टू 2 Corinthians चैप्टर नंबर 2, 2 Corinthians chapter number 2, let me read for you verse number 10. 2 Corinthians chapter number 2 and verse number 10. सुने क्या लिखा है? To whom ye forgive anything, I forgive also. For if I forgave anything to whom I forgave it, for your sakes forgave I it in the presence of Christ, lest Satan should take an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. अब देखिए दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय के 10 वचन में, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय के 5 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है कि ऐसे व्यभिचारी बंदे को शैतान के हाथ में सौंप दो। लेकिन दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस जब कुछ महीने बाद, कुछ समय बाद ये पत्री लिखता है, तो अब तब तक ये व्यक्ति तौबा कर लेता है। ये अपनी सेक्सुअल इमोरालिटी, सेक्सुअल परवर्जन, अपने गंदे कामों का त्याग करता है और पूरी कलीसिया के आगे आके क्षमा मांगता है और पूरी कलीसिया इसको क्षमा करती है। और प्रेरित पौलुस क्या कहता है? कहता है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने उसे क्षमा कर दिया, मैं भी उससे क्षमा कर देता हूँ। अब प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है? प्रेरित पौलुस कह रहा है उस भाई को दोबारा संगत में ले लो, क्योंकि उसने पश्चाताप कर लिया, उसने अपने बुरे काम त्याग दिए, उसने अपना व्यभिचार का जीवन त्याग दिया, उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी और क्षमा हासिल की, और उसने मसीह की मंडली से, परमेश्वर के लोगों के सन्मुख आके माफ़ी मांगी और उसका जीवन बदल गया, उसका चरित्र और स्वभाव बदल गया। इसलिए आओ हम उस भाई को बहाल कर दें। हालेलुया। पहले कहता उसे शैतान के हाथ में सौंपो, क्योंकि वो परसिस्टेंट है, तौबा नहीं करना चाहता, क्षमा नहीं परमेश्वर से मांगता, और उसके चरित्र के द्वारा दूसरे लोगों के जीवन में ठोकर का कारण बन रहा है। लेकिन अब उसने क्षमा मांगी है प्रभु के सन्मुख, अपना जीवन बदला है, तो प्रेरित पौलुस कहता है उसे क्षमा कर दो। और प्रेरित पौलुस आगे आपको मालूम क्या कहता है, जो मैंने वचन पढ़ा आपके लिए, दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय का 11 वचन। क्या कहता है प्रेरित पौलुस? प्रेरित पौलुस कहता है लेस्ट सेटन शुड गेट एन एडवांटेज ऑफ अस। अगर आप क्षमा नहीं करेंगे उसे, जिसने अब तौबा कर ली है,
अपना जीवन बदल लिया है, अपनी चाल सुधार ली है और कलीसिया के आगे माफ़ी मांग ली है, पहले प्रभु के आगे माफ़ी मांग ली है, अब अपना जीवन बदल लिया है। अगर आप प्रभु से भी ज़्यादा धर्मी बनना चाहते हैं, होलियर देन दाओ आर्ट बनना चाहते हैं, उसे क्षमा नहीं करेंगे तो शैतान आपकी आजमाइश करेगा। हालेलुया। लिखा है, लेस्ट सेटन टेक एन एडवांटेज ऑफ अस, वी आर नॉट इग्नोरेंट ऑफ हिज डिवाइसेस। हमें क्षमा करना है, नहीं तो शैतान आपकी आजमाइश करेगा। शैतान आपको भी उसी पाप में गिराएगा जिसमें वो भाई गिरा था और आपने उस भाई की मजम्मत की थी दबा के, उस भाई को आपने रेप्रीमेंड किया था, उस भाई की उसको अच्छा जलील किया था आपने, और उसे क्षमा नहीं देनी चाहिए। अगर आप ऐसे एटीट्यूड में चलेंगे, शैतान आपको गिराएगा, फिर वही हाल आपका होगा। लेस्ट सेटन शुड गेट एन एडवांटेज, शैतान हमारा एडवांटेज ना ले। हालेलुया। समझ रहे हैं आप एडवांटेज? ये डोर खोल देगा। एक वूंड, एक जख्म जब खुल जाता है, एक जख्म जब खुलता है, एक वूंड खुलता है, तो स्पिरिट ऑफ फियर, स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन, एंगर, स्पिरिट ऑफ लोनलीनेस, स्पिरिट ऑफ बिटरनेस, ये सारी फ्लड गेट की तरह आती हैं बाहर। मैं एक वचन और आपको देना चाहता हूँ, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय, ध्यान से सुनिएगा ये वचन। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 14 वचन, 2 Corinthians 11 वर्स नंबर 14। देखिए क्या कहता प्रभु का वचन। For no marvel, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light। प्रेरित क्या कह रहा है? प्रेरित कह रहा है कि हैरानी की बात नहीं है, शैतान एक रोशनी में ही, एक जलाली दूत के रूप में आपके आगे आ सकता है, एक जलाली दूत के रूप में। कई ट्रांसलेशन में आपको मालूम क्या लिखा है कि शैतान मास्करेड करके आएगा। मास्करेड समझते हैं आप? चेहरे के ऊपर मास्क लगा लेना। मुझे नहीं मालूम आप कभी गए हो कि कई बार पार्टीज़ होती हैं, मास्करेड पार्टी, उसमें लोगों ने एक मास्क पकड़ा होता है अपने हाथ के आगे, डंडी सी लगी होती है, ऐसे पकड़ा होता है। जितने पार्टी में लोग आए होते हैं सब ने अपने चेहरे पे मास्क लगाया होता है, किसी को मालूम नहीं होता कौन है उस पार्टी में। मास्करेडिंग पार्टी, एक वो अपने आगे चेहरे के आगे मास्क लगा के घूमते हैं, लोग प्रिटेंड करते हैं कि हम कुछ और हैं जबकि वो होते कुछ और हैं। शैतान भी ऐसे करता है, शैतान प्रिटेंड करता है, प्रिटेंड करके आता है। आपको मालूम, होली स्पिरिट इज़ अ कंफर्टर। पवित्र आत्मा कंफर्ट करने के लिए आता है, हमें सांत्वना देता है, तसल्ली देता है। पवित्र आत्मा हमें खुशी देता है, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की प्रेजेंस से भरता है। पवित्र आत्मा हमारे दिलों को दिलासा देता है, हमारे दिलों में शांति लाता है, हमारे दिलों में सुकून लाता है। पवित्र आत्मा हमारे दिलों में रोशनी भरता है। पवित्र आत्मा कंफर्टर है। और आपको मालूम, ईवल स्पिरिट, शैतान का आत्मा क्या है? शैतान का आत्मा टॉर्मेंटर है। शैतान का आत्मा टॉर्मेंट करने के लिए आएगा। आप सुने ध्यान से, जब आपको कोई हर्ट देगा, जब किसी ने आपको हर्ट किया, आपका ब्रोक योर हार्ट, आपका दिल टूटा या ब्रूज मिला आपको, 2 चीज़ें के ऊपर मैं मनन कर रहा हूँ। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में से यीशु मसीह की 5 सेवकाइयों में से 2 बिंदुओं पे, एक तो टूटा दिल जो हमने कल कवर किया, दूसरा आज जिसके ऊपर मैं मनन कर रहा हूँ वो है ब्रूजेज, इंटरनल, अंदरूनी घाव। तो जब आपको हर्ट मिलता है तो पता क्या होता है? शैतान आता है भेस बदल के, मास्करेड करके, वो आपको कंफर्ट देने की कोशिश करता है। मैंने अपने जीवन में देखा, मेरी शादी को 14 साल हो रहे, मैंने देखा कई बार मेरी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया, वाद विवाद हुआ। जब वाद विवाद हुआ तो मैंने देखा कि मेरा जो पॉइंट था वो सही था, मेरी पत्नी का पॉइंट गलत था। तो मेरी बीवी आर्ग्यूमेंट करके मेरे साथ झगड़ के चली गई, दूसरे रूम में चली गई, दूसरी तरफ चली गई या रूफ टॉप पे चली गई। तो जब मेरी बीवी चली गई तो मैं अकेला था और मैं विचार कर रहा हूँ कि मेरी बीवी का एटीट्यूड सही नहीं था, आर्ग्यूमेंट जो थी उसकी गलत थी, मैं सही था। तो इतने में मैं क्या महसूस करता हूँ कि शैतान आता है और शैतान आके मेरे कंधे पे हाथ रखता है और मुझे कहता है तू सही है, यू आर राइट, शी इज़ रॉन्ग, वो गलत है तेरी बीवी। तेरी बीवी को मालूम नहीं है कि तू उसका पति है, उसे तेरा सम्मान करना चाहिए, उसे तेरी लीडरशिप में रहना चाहिए,
उसे तेरे आगे इस तरह बोलना नहीं चाहिए, उसने तेरा अपमान किया है, उसको ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए थी। तो मुझे हल्की हल्की ना वॉर्मनेस सी आ रही है, वॉर्मनेस सी, जैसे लग रहा है कि शैतान बड़ी लेजिटिमेट बातें बोल रहा है। वो मेरे को कह रहा है नहीं नहीं वो गलत है, और मुझे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा है, कंफर्ट करने की, और नहीं नहीं गलत है वो, बिल्कुल उसका रवैया गलत है, एंड यू शुडंट फॉरगिव हर। तो मैं अपने दिल में बोलूँगा नहीं 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 मुझे फॉरगिव तो करना है, प्रभु कहता है फॉरगिव करो। ओके फॉरगिव करना, बट यू नेवर फॉरगेट, तूने भूलना नहीं है वो। और फिर विस्पर करेगा, तुम्हें मालूम है आज तुमने अपनी पत्नी के सही कलर देख लिए, सही कलर देखे, देखिए वो कैसे झूठ बोलता है, वो मास्करेड करके आता है, आपके ऊपर बाम लगाता है, मरहम लगाता है, आपको सांत्वना देता है झूठी। वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो बदरू है, वो दुष्ट आत्मा है। वो कभी आपको कंफर्ट नहीं करेगा, वो डिसीव करेगा आपको, झूठ बोल के, लाइज के द्वारा, झूठ के द्वारा सडूस करेगा आपको। अगर आप उसके संग एग्री करेंगे तो वो आपके संग चलेगा। अगर आप उसके संग एग्री कर रहे हो, उस समय अपनी पत्नी के विरुद्ध में मैं एग्री करना शुरू किया, उसने एक आर्गूमेंट दी, मैंने बोला हाँ ये सही है, हाँ ये सही है, तो क्या करेगा शैतान? शैतान मेरे अंदर बिटरनेस पैदा कर देगा, फिर मेरे अंदर दीवार खड़ी करेगा, मैं अपनी पत्नी से बातचीत नहीं करूँगा, मैं शट डाउन कर जाऊंगा, अंदर से पूरी तरह शट डाउन कर जाऊंगा, और मैं यही मनन करूंगा कि मैं सही था, वो गलत है, मैं उसने मेरे स्पिरिचुअल अधिकारों का हनन किया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो आर्ग्यूमेंट शैतान धीरे धीरे अंदर 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 भरता जाएगा, फिर वो मेरे अंदर बिटरनेस पैदा करेगा, फिर एंगर, रिजेंटमेंट पैदा होगी, बदला लेने की भावना आएगी मेरे अंदर, हेट पैदा होगी, मैलिस, एनवी, जेलसी, और कितनी टनल खोल देगा शैतान बुराइयों की। लेकिन मैं उसी समय उठूंगा, यीशु मसीह के नाम में उसकी हर आर्ग्यूमेंट को रद्द करूंगा, उसे पांव के नीचे कुचलूंगा, एंड आई विल गो एंड आई विल जस्ट हग माय वाइफ। हालेलुया। इफ यू डोंट डू दैट, वो मास्करेड करके आएगा, ज्योतिमयी दूत की तरह आपके पास आएगा और आपको भरमालेगा, और आपके अंदर क्या भर देगा? बिटरनेस, कड़वाहट भरेगा, क्रोध भरेगा, बदला लेने की भावना भरेगा, नफरत भरेगा, जलन भर देगा, हेट्रेड भर देगा आपके अंदर, नफरत भर देगा और कुड़कुड़ाना भर देगा आपके अंदर, और आपके अंदर अहंकार भर देगा, आपके अंदर जलन भर देगा। हालेलुया। और हर तरह की बुराई की बातों को आपके अंदर भर देगा, और आपका जीवन टॉर्मेंटर के हवाले हो जाएगा। टॉर्मेंटर आपको टॉर्मेंट करना शुरू कर देंगे। मैंने कई लोगों के लिए प्रार्थना की जो इतने डीप हैं, उनके अंदर वूंड बहुत गहरे हैं ब्रूज है उनके अंदर, बहुत डीप ब्रूज। कई बार मैंने ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी शुरू की, वचन से मिनिस्टर किया, लेकिन उनके अंदर से ऐसे मुझे महसूस हुआ जैसे बदरू कहती मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, दुष्ट आत्मा कहता मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मेरा इसके ऊपर लीगल राइट है, मेरा इसके ऊपर अधिकार है, इसने मुझे लीगल राइट दिए हैं इस व्यक्ति ने। भाई और बहनों, सबसे ज़बरदस्त हीलिंग है इमोशनल हीलिंग। आपका अंदर से इमोशनली पूरी तरह मुकम्मल तौर पे चंगे हो जाना, आपके अंदर के गहरे घाव, गहरे ज़ख्म चंगे हो जाना। हालेलुया। नहीं तो आप अंदर से भरे होंगे रूट ऑफ बिटरनेस के साथ। मैं कल इसके ऊपर आपके साथ मनन करूंगा, कड़वाहट की जड़ें क्या हैं जो लोगों के चरित्र और स्वभाव में हैं। कड़वाहट की जड़ें। भाई और बहनों, अगर किसी ने आपके लिए भलाई की है ना, आपके जीवन में पैसा बोया है, करुणा बोई है, दया बोई है, उस समय जब आपको बहुत ज़रूरत थी, उसे भूलिए मत, उसे याद रखिए, उस करुणा दया भलाई को स्मरण कीजिए। परमेश्वर देख रहा है सब कुछ, उसे याद कीजिए और करुणा कीजिए, दया कीजिए। हालेलुया। करुणा कीजिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए। मैंने अपने मेरे जीवन से सैकड़ों लोगों ने एडवांटेज लिया, मुझे इस्तेमाल किया लोगों ने।
मैंने लोगों के जीवन में पैसा लगाया, मैंने लोगों के जीवन में अपना टाइम बोया, मैंने लोगों के जीवन में आत्मिक बातें बोई, कलाम बोया, पैसा बो, सब कुछ बोया। लोगों ने मेरे को चीट किया, यूज़ किया, और यूज़ करके थ्रो कर देते हैं लोग दुनिया में। तो मेरा हृदय कड़वाहट से भर जाता। आपको मालूम, बहुत सारे लोगों को मैंने ब्लेस किया सेवकाई में, बहुतेरों को बाइबल कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा, उनके जीवन में 3-3 साल 5-5 साल मैंने पैसा बोया। बहुत सारी सेवकाइयों की सहायता की, पासवानों को खड़े किया, चर्चेस बनाए, कईयों के घर बनाए, कईयों को बाइक्स लेके दिया, कईयों के बच्चों की एजुकेशन में मैंने सहायता। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे 90% टाइम्स लोगों ने मुझे चीट किया, यूज़ किया, पीछे से स्टैब किया मुझे। तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे हील किया, मुझे ये गहरी बातें सिखाई। प्रभु ने मुझे बताया, लोगों ने तेरे संग ऐसा किया, और फिर शैतान आया, और शैतान ने आके मुझे बोला, तू क्यों लोगों से भलाई करता है, क्यों लोगों के जीवन में पैसा बोता है, क्यों लोगों के जीवन में आउट ऑफ द वे जाके इतने काम तू करता है, तू आराम से रह, जस्ट चिल आउट, जस्ट एन्जॉय, जस्ट लिव एन एवरेज मीडियोकर क्रिश्चियन लाइफ। मैंने बोला नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं दया करनी, करुणा करनी, भलाई करनी, लोगों के जीवन में बोना कभी बंद नहीं करूँगा। ये मेरे जीवन का पर्पज़ है, ये मेरी असाइनमेंट है, ये मेरी बुलाहट है। लोग बुरे हैं, लोगों ने मेरी भलाई के बदले में मुझे बुराई दी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भलाई करनी बंद कर दूंगा, मैं करता रहूँगा। हालेलुया। और जो कुछ भी भलाई मैं कर पाया, जो कुछ भी भले बीज मैं बो पाया, जो कुछ भी लोगों के जीवन में डिफरेंस ला पाया, मैं आत्मिक फल बीज पाया, पैसा बीज पाया, या अपना समय बो पाया लोगों के जीवन में, जो कुछ भी भलाई मैं कर पाया, ये सिर्फ और सिर्फ यहोवा की करुणा से कर पाया। क्योंकि मैं तो अपनी माँ की कोख से नंगा आया था। सब कुछ जो कुछ यहोवा ने मुझे दिया, अपनी करुणा से, अपने अनुग्रह से, अपनी दया। आपको मालूम, शैतान लोगों भलाई करते हो, बहुत कुछ लोगों के जीवन में बोते हो, लोग लौटाते नहीं हैं आपका, और लोग बल्कि उसके बदले में बुराई करते हैं आपकी। उन्हें मालूम होता है कि उनको लौटाना है, लेकिन शैतान उनके अंदर आ जाता है, टॉर्मेंटर, और उनके अंदर बुरी चीज़ें बोता है। तब भी आपने क्या करना है भाई और बहनों? करुणा के बीज बोने हैं। हालेलुया। दया के बीज बोने हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ताकि आपका जीवन टॉर्मेंटर के हाथ में ना हो। मेरा जीवन होली स्पिरिट के हाथ में है। हालेलुया। क्योंकि मैंने क्षमा किया लोगों को जिन्होंने मेरे संग, मैंने भलाई की है उनके संग, उन्होंने मेरे संग बुराई की है, तो भी मैंने उन्हें क्षमा किया है। इसलिए मेरा जीवन होली स्पिरिट के हाथ में है। होली स्पिरिट हमेशा कंफर्ट करेगा आपको, होली स्पिरिट हमेशा रोशनी से भरेगा आपको, होली स्पिरिट हमेशा आपको खुशी से भरेगा, होली स्पिरिट हमेशा जॉय, द जॉय ऑफ द लॉर्ड आपके जीवन से दूर नहीं जाने देगा। लेकिन जिन लोगों ने भलाई के बदले में बुराई दी है, उनका जीवन टॉर्मेंटर के हाथ में है और वो जेल में डाले गए हैं। यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 18:35 में, सेम थिंग माई फादर विल डू। पिता करेगा ये काम, टॉर्मेंटर भेजने का। तो भाई और बहनों, हम कंफर्ट के अंदर, कंफर्ट के हाथ में सौंपे गए हैं, होली स्पिरिट के कंफर्ट के। इसलिए आओ अपना जीवन मॉरली भी सही करो। अगर किसी का देना है ना पैसा, आपने लौटाइए उसे। किसी की भलाई के बदले में बुराई मत दीजिए, ताकि परमेश्वर की अदालत में आपके विरुद्ध कोई ऐसी बात ना हो। आपका जीवन पूरी तरह से सही हो, ज्योति में हो परमेश्वर के आगे, रोशनी में हो परमेश्वर के आगे, ताकि आप परमेश्वर के हाथों को खोलें, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय यीशु मसीह की। और अगर आप में से कोई भेंट, मैं कहता हूँ, मुझे कई बार अजीब सा लगता है क्योंकि लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते। अगर कोई बीज बोना चाहे तो प्लीज़ बोना चाहिए, हमें बोना चाहिए प्रभु के काम के लिए। प्रभु के वचन का सही प्रत्युत्तर होता है बीज बोने के द्वारा। कुछ भी प्रभु हमारे हृदय में डाले, हमें प्रभु के काम के लिए बोना चाहिए, और प्रभु आपको आशीष देगा अगर आप बोएंगे। अगर आप नहीं भी बोएंगे तो भी इट इज़
बिफोर मैं ये नहीं कह रहा, जैसे लोग प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु जी जिन्होंने बोया उनको भी बरकत दे दो, जिन्होंने नहीं बोया उनको भी बरकत दे दो। ये प्रिंसिपल नहीं चलता यहोवा के हेवनली कोर्ट के अंदर। तो ये रिलीजियस प्रेयर हैं सारी। तो आप परमेश्वर के आत्मा से पूछिए, होली स्पिरिट से पूछिए, अपना हार्ट खोलिए, होली स्पिरिट को लिबर्टी दीजिए आपके फाइनेंसेस को भी हैंडल करने की, आपकी फिज़िकल लाइफ को, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को, आपकी इकोनॉमिक लाइफ को, आपकी फैमिली लाइफ को, आपके जीवन के हर पहलू को होली स्पिरिट चलाए, उसे अनुमति दीजिए। बहुत सारे लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ को होली स्पिरिट के हाथ में नहीं सौंपते, बाकी जीवन के पहलुओं को होली स्पिरिट के हाथ में सौंपते हैं। संपूर्ण जीवन होली स्पिरिट के हाथ में सौंपिए। हालेलुया। और प्रभु आप सबको आशीष दे। कल मैं बिटरनेस के ऊपर, बहुत गहरी टीचिंग होगी बिटरनेस के ऊपर जो बहुत ज़रूरी है, ये इंटरनल गहरी बातें जिनसे आपका अंदरूनी व्यक्तित्व आज़ाद हो जाए और मसीह में प्रफुल्लित हो और यीशु मसीह की गहराई आपके अंदर से दिखाई दे। तो ये बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए सीखनी, और इन्हें अपने जीवन की गहराई में लीजिए और इन बातों को दूसरों को सिखाइए। हालेलुया। और प्लीज़ हमारे लिए, हमारे घराने परिवार के लिए अभी प्रार्थना कीजिएगा, अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखिएगा। और कल मैं बिटरनेस के ऊपर, वी विल टॉक अबाउट बिटरनेस टुमारो। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस।